हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गूगल क्लास। एक बार फिर मैं आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ, अपने नए केस स्टडी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5. You know that we discuss around all the questions which are related with board level problem, all the questions which are related with NCERT level, some basic concept we discussed in previous videos. And you know that I told you ki in my 6th edition is a very important for you because this time CBSE introduced case study, and the weightage of the case study is a 10% overall the paper. And you know that in the question framing, in the concept, you can easily understand that there are the number of the MCQ based problem will come in the exam. इसका weightage उससे ज़्यादा भी आप देख सकते हैं. Now these are the completely MCQs problem. मैंने भी यहाँ पर कुछ लिया है, but उससे पहले before starting this topic, this is my suggestion to you. If you want to command in this topic, if you solve the number of the problems, first you will be start with your all the identities. You should be learn all the values of the trigonometrical function. Then it would be very easy because the case study is the completely package of this topic. You have to remember each and everything regarding this topic. Then you can easily comfortable to solve this problem. And आपको याद होगा, I promise you कि if you follow some instructions, some rules, then you can easily make the number of the problems. Is not possible. You need books and any other sources. In this my video only I will help you how to frame a number of the questions, how you can make a one problem in a different manner. You can solve this problem in the one problem you can solve by the different identities. This is the purpose of the CBSE ki to increase your analytical power, your thinking power, in how many direction you can think, you can solve the one problem in different way. So welcome to all of you once again my dear students. This is my video only the based on to how to make, how to solve number of the problems related with the case study. So let me start the trigonometrical topic. This is my first lecture case study से related है. number of lectures में आते जाएंगे, मैं आपको अपने वीडियो में बताता जाऊंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम वो सीखेंगे. आपको एक फंक्शन दिया गया है. द मीनिंग ऑफ फंक्शन इज एनी फंक्शन आई एम टेकिंग sin x. यू कैन इजीली सी दैट मैंने एक फंक्शन लिया है sin x. इसका मतलब ये है कि आपको sin x से रिलेटेड लगभग वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटीज, फॉर्मूला, कुछ अपनी तरफ से कुछ नए फंक्शन ऐड करके विद रिस्पेक्ट टू cos x में कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके कुछ आंसर्स यहाँ पे होंगे. आप कोशिश करें कि आप खुद भी उसका आंसर दे सकें. तो सबसे पहले रिमेंबर यू हैव वन थिंग, एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये सभी प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हैं. इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. So let me start my first problem. Very simple problem I am giving you. You can easily solve it. Function is fx और उसका पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है which is the correct. इसमें क्या सही हो सकता है. I repeat again, this is the function. बार बार हम इसे यूज नहीं करेंगे ना, बोर्ड में मेंशन किया जाएगा. So अगर आप देखें फंक्शन इज sin x और आपको ऑप्शंस की बेस्ड ये समझ में आ जाएगा. sin x जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल. ऑप्शन बी b by h not possible. ऑप्शन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज द पॉसिबल. एंड h upon b, तो हम इसका जो करेक्ट आंसर लगाएंगे. देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी. बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत सिंपल लेवल की प्रॉब्लम्स मैंने आपको ली है. एक ही पर्पस है, आपको इस प्रॉब्लम को पहले मुझे बताना, सिखाना, देन वी विल सॉल्व द एडवांस नंबर ऑफ द प्रॉब्लम आल्सो. सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो गिवन दैट फंक्शन इक्वल टू, मतलब फंक्शन मतलब sin x. आई रिपीट अगेन, फंक्शन इक्वल टू, फंक्शन इक्वल होगा फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन. किस फंक्शन के? दैट मींस कहने का मतलब ये कि जब आप इन फंक्शन को सॉल्व करें तो इसका आंसर sin x आना चाहिए. द कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस. हम जानते हैं, वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा माय डियर स्टूडेंट होता है sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा sec थीटा, मतलब ऑप्शन 1 इज नॉट पॉसिबल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकंड. मुझे वो करेक्ट लग रहा है. यू नो दैट 1 -
cos स्क्वायर थीटा आप देखेंगे तो वो होता है sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, व्हेन यू विल सॉल्व इट वुड बी sin थीटा। ऑप्शन मैच कर रहा है। थोड़ा सा जो मुझे इसमें करेक्शन करना है कि यहाँ पे थीटा के प्लेस पर हमें x रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक्सिस से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे इन प्लेस ऑफ थीटा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा x, जो मैच कर गया। 1 प्लस cos स्क्वायर x कोई आइडेंटिटी नहीं होती जो रूट से बाहर निकाल सके, आप इसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं पर यहाँ से साइन नहीं मिलेगा। sec स्क्वायर x माइनस का 1 आप जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x होता है, जो रूट से बाहर निकलने पे tan देगा, साइन नहीं देगा। जो करेक्ट आंसर मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए और बी ही होगा। आप लगाइए इसका ऑप्शन बी और आप देखेंगे तो एक केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस स्टडी प्रॉब्लम नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन विद cos x। अगर मैं sin x का प्रोडक्ट करूं किसी दूसरे फंक्शन से, द फंक्शन इज cosec x, आप देख सकते हैं। सो प्रोडक्ट हमने करा, यहां पे आप देखेंगे sin x into cosec x by प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जब इनवर्स का प्रोडक्ट होता है तो हमेशा कट के हमें 1 मिलता है। देन सॉल्व करने पे जो फाइनल वैल्यू आएगी आपको वो 1 आएगी। ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल, -1 नहीं हो सकता, डी इज नॉट पॉसिबल, इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हम लगाएंगे वो आंसर होगा बी, माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है इफ फंक्शन डिवाइडेड बाय cos x। अब इफ फंक्शन इज डिवाइडेड बाय cos x दैट मींस मैं इफ आई डिवाइड sin x बाय cos x, देखते हैं हमें क्या मिलता है यहां से। सो sin x डिवाइडेड बाय cos x, sin x divided by cos x, we all know that this is the equals to tan x। ऑप्शन चेक करते हैं, sec x पॉसिबल नहीं है, cot x is not possible। अगेन ये cos x cot, this is cos and this is the tan। आप देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी का जो सही आंसर होगा होगा डी। सो नाउ द आंसर डी इज द करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अगेन देख सकते हैं आप, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस sin x से सॉल्व कर रहे हैं। नाउ दिस टाइम द गिवन इज दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन के वैल्यू से रिलेटेड मुझे लगता है आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। सो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्रॉम 0 डिग्री टू 90, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 90। ऑप्शन से देखते हैं तब समझ में आएगा उसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन का कांसेप्ट ये है, इंक्रीजिंग होगी मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिक्रीजिंग होगी या कम होगी। आंसर है दोनों हो सकती हैं, पॉसिबल है या नन ऑफ दिस। सो अगर हम देखें तो sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है। sin अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 45 1/√2 सॉल्व करेंगे फिर बड़ा आएगा। देन sin 60 डिग्री √3/2, देन अगेन ग्रेटर वैल्यू मिली आपको। एंड देन sin 90 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1। दैट मींस फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर मूव करेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए ए। सो दिस टाइम जो राइट आंसर होगा, द आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द माय सिक्स्थ क्वेश्चन इज, यू कैन इजीली सी दैट अगेन दिस इट इज द वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स, एंड द वैल्यू इज गिवन दैट इफ x इक्वल्स टू 45 डिग्री, अगर हम x की जगह पे 45 सब्स्टिट्यूट करें सो ये फंक्शन हमें क्या आंसर देगा। सो जैसा मैंने एज यू आई टोल्ड यू शुड बी रिमेंबर the value with respect to sin x this time. So we need the value of sin 45, and sin 45 is a 1/√2. The right answer is 1/√2. 1/2 is the wrong answer. Sin 30 is a 1/2. 1/√2 is the right answer. 45 degree minus not possible. 10th क्लास में नहीं, आप हायर क्लासेस में सीखेंगे नेगेटिव वैल्यू 0 डिग्री होता है 0 डिग्री पर, सॉरी 0 वैल्यू होता है 0 डिग्री पर। सो करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर इज विल बी ए। सो आप देखिए नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स वी डिस्कस रिगार्डिंग ओनली द वन एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन इज द sin x। आप देखेंगे तो इसमें हमने इतनी प्रॉब्लम्स को यहां पे फ्रेम करा। इसके आगे के और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा कि आप भी इस तरह के क्वेश्चंस कुछ फ्रेम कर सकते हैं।
Okay, so problem number 7, problem number 8, problem number 9 and problem number 10, again the function is the same. आप देख सकते हैं फंक्शन जो आपको दे रखा है, the function is given that and function is again sin x. आप देख सकते हैं, so this is the function, इसको करेक्ट कर लेते हैं. Again the function is sin x. Now according to the problem number 7, you can easily see that function is a multiple by itself equal to, अगर फंक्शन को फंक्शन से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या वैल्यू मिलना चाहिए. सो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन चलिए हम फंक्शन से करते हैं. वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है sin x, मल्टीप्लाई करा हमें sin x से, हमें मिलेगा नाउ वी फाइनल वैल्यू इज sin स्क्वायर x. नाउ sin स्क्वायर x, चलिए हम इसको देखते हैं क्या मिलता है. आप देखेंगे तो पूरी फंक्शन में कहीं भी आपको sin स्क्वायर x नहीं है. दैट मींस अगेन द क्वेश्चन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन. sin स्क्वायर x के प्लेस पर हम देखेंगे तो कुछ वैल्यूज हमें cos के फॉर्म में दिख रही हैं, कुछ tan के फॉर्म में और कुछ cosec के फॉर्म में. सो अगर हम याद करें sin स्क्वायर से रिलेटेड क्या फॉर्मूला पॉसिबल हो सकता है, सो sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x. देखते हैं ऑप्शन कहीं मैच करता है. सो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी बिल्कुल इससे मैच करता है. ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. ए में आप देखेंगे ए इज अ पॉजिटिव साइन जो पॉसिबल नहीं है एंड माइनस साइन इज अ पॉसिबल. सो sin स्क्वायर x जो आप लिख के आएंगे करेक्ट आंसर वो होगा आपका. फिर यहाँ पे लगाइएगा थीटा के प्लेस पर x लगा दीजिए, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डी. सो इसका जो सही आंसर आप लिखेंगे वो आंसर हो जाएगा आपका. फिर से दोबारा से चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 8. According to problem number 8, it is again given that with respect to multiplication concept, according to the question, it is given that a function multiplied by who is this function. अगर हम इस फंक्शन को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या डेटा मिलना चाहिए. देखते हैं हमें प्रोडक्ट करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो sin x multiplied by, so sin x multiplied by 1 by cosec x minus cosec x. बेस्ट होगा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, बेटर. जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा तो आपको मिलेगा यहां से sin x डिवाइडेड बाय cosec x माइनस sin का मल्टीप्लाई जब आप cosec में करेंगे सो sin x इनटू cosec x. सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था. प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन बोथ आर इनवर्स. आंसर मिलेगा यहां से 1. ओवरऑल आप देखेंगे तो sin बाय cosec माइनस 1. बट जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको ऑप्शन में मैच नहीं करता है. अगेन दे आर यूजिंग सम ट्रिक ओवर हियर. दे वांट द डिफरेंट टाइप ऑफ द आंसर. सो लेट अस सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन. sin x 1 upon cosec x. यू नो वेरी वेल दैट 1 by cosec x में यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ. 1 upon cosec x होता है sin x. मतलब आपको यहाँ से एक साइन और मिलेगा जो मल्टीप्लाई होगा इस साइन से. इसका मतलब सेम ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पहले वाले से कोरिलेट हो रहा है जिसमें हमने साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया था. सो जब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 upon sin यहाँ से मिलेगा 1 upon cosec से sin x का sin x से मल्टीप्लाई इट वुड बी अगेन sin स्क्वायर x. सॉल्व करने पे यहाँ से मिला माइनस का 1 sin स्क्वायर x माइनस का 1. हम देखेंगे यहाँ पे तो देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलता है. कुछ ऑप्शन मिलता भी है फिर कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है. sin स्क्वायर x माइनस 1 जो होता है वो cos स्क्वायर x होता है. मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस का sin. ये मुझसे छूट गया है, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा. सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. sin स्क्वायर x माइनस 1 कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी ये होती है 1 माइनस sin स्क्वायर x. आप देखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू में आ जाएगा cos स्क्वायर x. लेकिन आप जब देखते हैं प्रॉपर्टीज फॉर्म में हो आप यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं. व्हेन यू कैन टेक द माइनस कॉमन, जब आप यहां से माइनस निकालेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. सो नाउ आप टेक माइनस कॉमन. जब माइनस लिया तो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस. हम उसको इस वे में भी लिख सकते हैं. एक ही बात है. जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे cos स्क्वायर x. बट डोंट फॉरगेट विद माइनस साइन. सो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी. आप देखेंगे विद माइनस साइन. सो देखिए हम इसमें
साइन लगाते हैं और आपने देखा जिसका 8th का जो क्वेश्चन था वो उसका सही आंसर निकल के आया आपका माइनस cos x। चलिए ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम आप दोबारा से देखें, क्वेश्चन नंबर 9 केस स्टडी से रिलेटेड। आप एक ही क्वेश्चन में देखेंगे कितने वैरायटीज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है इसमें। टू एक्सप्रेस cot x in terms of sin x, आपको cot x को रिप्रेजेंट करना है sin x के रिस्पेक्ट में। इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। आप जब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं तो यू नो दैट आपको एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम रेशियोज पूछे जाते हैं। उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने यहाँ पे फ्रेमिंग करा है। नाउ दिस टाइम द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज दैट यू एक्सप्रेस द cot x in terms of sin x, मतलब अंदर sin का फॉर्मेट होना चाहिए, सॉल्व करने पे cot x आना चाहिए। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर मैच करता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। ये दिस इज द sin x, बट अब अभी आप देखेंगे हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है 1 + sin स्क्वायर x, देयर इज नो प्रॉपर्टी, यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आप यहां से इस एग्जैक्ट फंक्शन नहीं निकाल सकते, इसको रहने दें क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, सिर्फ कांसेप्ट यूज करना है। नाउ अगेन यू कैन सी दैट सेम रेसिप्रोकल कांसेप्ट इधर दे रखा है 1 + sin स्क्वायर x, कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती जिससे हम रूट से बाहर आ जाएं, इसको रहने दें, इसमें चेंज कुछ ना करें। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहां से हम रूट से बाहर आ सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो sin x आप देखेंगे न्यूमरेटर में है, अंडर रूट में आपको मिला 1 - sin स्क्वायर x, जब आप अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर x सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है cos स्क्वायर x। स्क्वायर से रूट चला जाएगा, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा sin x डिवाइडेड बाय cos x। sin बाय cos आपने सॉल्व किया, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको बच्चों मिलेगा यहां से 10x। आप जानते हैं आपको cot x रिप्रेजेंट करना है, आपका जो आंसर है यहां से आ रहा है 10x, जो पॉसिबल नहीं है। अब आप देखेंगे तो ठीक इसका रेसिप्रोकल आपको यहां दिख रहा है, इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट ऊपर लग जाएगा। सेम ध्यान से देखिए आप, सेम कांसेप्ट है, मतलब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा cos x और ये एज इट इज रहेगा sin x। cos बाय sin जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है cot x। दैट मींस यू कैन इजीली सी, इसको सॉल्व करने पे जो आपको डेटा आएगा वो आएगा cot x। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी पे करेक्ट टिक लगाइए, तो ये आपका जो ऑप्शन निकल के आएगा 4th इज द करेक्ट। चलिए now we will discuss the next problem, and the problem number 10 again related with is given that multiply। you can easily see that multiplication हम यहाँ पे भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर चुके हैं। this is the third problem आप देखेंगे related with the multiplication। in the question again is given that if the function multiplied by cot x, आपको cot x से इसका multiplication करके ऑप्शन चेक करना है इसमें क्या ऑप्शन मैच करेगा। so let me start to multiply sin x। don't forget, मैंने आपको पहले ही बोला है आपका जो फंक्शन है वो sin x है, नंबर ऑफ ऑपरेशन आप उसी में ही अप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका cot x में, बट माय डियर स्टूडेंट ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं करेगा, आप ध्यान से देखेंगे। दैट मींस आपको इसको सिंपलीफाई करना होगा। आई थिंक sin x को आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट यस यू कैन चेंज इन द cot x। cot x को आप मेंशन कीजिए cos x डिवाइडेड बाय sin x। यू कैन इजीली सी दैट ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा आप इसे कट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन इजीली कट इट। जैसे ही आप इसको कट करेंगे आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर मिलेगा आपको cos x। बट अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ कहीं भी आपको देखिए cos x नहीं मिलेगा, मतलब आपसे एक ही क्वेश्चन में कितनी वैरायटीज की प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं। cos x को हम जानते हैं 1/sin x नॉट पॉसिबल, 10x नॉट पॉसिबल एंड cosec x, बट ऑप्शन सी इज पॉसिबल। cos x जो होता है 1/sec x होता है। आप देखेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आना चाहिए और जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका सी। सो 1/sec x आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेंगे आपको 1/cos x, सॉरी cos x को सॉल्व करने पे 1/sec x। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। इसी से रिलेटेड sin x से रिलेटेड आपने देखा और प्रॉब्लम भी पॉसिबल हो सकती हैं। अब हम कुछ दूसरा फंक्शन लेके कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। So now the next function, this time I am taking the another question, and the question is 9 sec square x minus 10 square x।
9 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। आई थिंक आपको याद हो गया, हमने एनसीईआरटी में भी सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया था, एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम था। सेम प्रॉब्लम है एज इट इज, नो चेंज, सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, मतलब द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को देखिए कितने वैरायटीज में चेंज कर सकते हैं, कितनी वैरायटीज से उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो ये एग्जांपल है आपके सामने। नाउ दिस इज द क्वेश्चन इज अ sec स्क्वायर x minus 10 स्क्वायर x, और आपसे ऑप्शन बेस्ड हमें समझ में आता है इसकी वैल्यू पूछी गई होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पैटर्न का, उस पैटर्न में हमें दे रखा है कि अगर ये एक्सप्रेशन नंबर के फॉर्म में होता तो क्या होता, राइट। सो 9 sec स्क्वायर x minus 10 स्क्वायर x को अगर हम सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए sec स्क्वायर थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा, आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपने कई बार करी है और हमने ड्राइव भी करा था इसे। ड्राइव करने के बाद आपने देखा था हम इसका आंसर निकाल के लाए थे, बट आप देखेंगे तो इस बार जो इसका फ्रेमिंग है वो फ्रेमिंग थोड़ा सा चेंज है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आप देखेंगे इक्वल्स टू में 1 आएगा। यहां मैंने थीटा मेंशन कर रखा है, यहां पे x है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है इक्वल्स टू में 1। जब आप यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई आप 9 में करेंगे, सो 9 into 1 सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आपको मिलेगा 9। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, अगर हम सही ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, now the next problem. The value of sec square x minus 10 square x. आप फिर से देखेंगे लगभग उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम था, छोटा सा चेंज करा हमने। कनेक्टिविटी अगर आप चेक करेंगे तो उसी से रिलेटेड ही कनेक्टिविटी है। sec square x minus 10 square x आप देखें, सो सेम वैल्यू अपन को रखने पे मिलेगा 1। दैट मींस जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 1। आई थिंक दोबारा से इसका ऑप्शन हम देखें, ऑप्शन हमको मिलेगा 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखेंगे, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। अगेन आप देखिए आंसर कितनी जल्दी आएगा इसका, आप कहां पे टाइम ज्यादा लगाएंगे और कहां इसका ट्रिक हम यूज करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूट 45 डिग्री, आप सब्स्टिट्यूट करें 45 x के प्लेस पर, तो बताइए फंक्शन क्या वैल्यू देगा। सो आप सोच रहे होंगे कि आपको इसके अंदर वैल्यू रखना है, मैं भी वैल्यू रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है हम विदाउट वैल्यू भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं वैल्यू पहले रखूंगा ताकि आप शायद अगर नहीं सोच पाए हो तो देखिए कि आप क्या गलती कर रहे थे। sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, मैं 100% आपसे बोलता हूं इसको सॉल्व करने में 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, एंगल सेम होना चाहिए। फिर भी हम इसे सॉल्व जरूर करेंगे। मुझे लगता है इसका आंसर डी इज करेक्ट, सही डी ही होगा। सेम इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने यहां पूछा है, वहां आप देखेंगे x था, यहां पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यस, इसका आंसर वैरी तब करता जब दोनों एंगल में चेंज होता, 45 और कुछ अदर एंगल्स होता, सो कभी भी इसका आंसर 1 नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। बट आप देखेंगे यहां पे इसका 1 ही आएगा। sec 45 की वैल्यू होती है √2, देखेंगे स्क्वायर है इसलिए √2 स्क्वायर होगा। 45 अगर tan 45 है इसका मतलब 1 का स्क्वायर अगेन 1, √2 स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 सॉल्व करने पे हमें कितना मिला, हमें मिला 1। आप देखेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आया वो रहा 1। आप चेक कर लीजिए, अगर आप अपना टाइम अगर सेविंग करते तो आपको जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप डायरेक्ट यहां पे 45 डिग्री जब आप यहां पे रखते, सेम यू कैन यूज द आइडेंटिटी, आंसर ऑलवेज बी 1। तो इसका जो फाइनल आंसर होता विद इन 2 सेकंड्स आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते थे बिना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इसलिए हमेशा याद रखें, आप आइडेंटिटीज पे जितना फोकस करेंगे टाइम कंजम्पशन आपका कम लगेगा, आंसर आउटपुट बहुत फास्ट होगा। सो इसका जो सही आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपलीफाई 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x। नाउ इन दिस प्रॉब्लम एक फोर्थ नंबर, आप जब इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 4th, ये था 3rd, इसको थोड़ा नंबरिंग यहां कर देते हैं, ये नंबरिंग इधर कर देते हैं। सो 4th नंबर प्रॉब्लम में आप सबसे पहले ऑप्शन चेक करें, आपको ऑप्शन 10 के फॉर्म में गिवन है। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी हमें सिंपल जो करना चाहिए वो 10 के फॉर्म में करना चाहिए।
इस क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने जो एक प्रॉपर्टी मेंशन की थी, आई रिपीट अगेन, सेक स्क्वायर x जो होगा वो होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। नाउ आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन 10 से रिलेटेड है, दैट मींस आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सेक स्क्वायर x के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इस फंक्शन में यहां पे आप यूज करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो आपको डेटा मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस 210 स्क्वायर x। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में 1 प्लस 210 स्क्वायर x फर्स्ट ही मैच कर रहा है, सेकंड देखेंगे तो 2 मिसिंग है, थर्ड आप देखेंगे तो यहाँ माइनस का साइन जो पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो नहीं सकता। सो इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे वो करेक्ट आंसर आपको मिला यहाँ पे, द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सो आपने देखा 10 से रिलेटेड हमने इस एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसी प्रॉब्लम में हमने नंबर ऑफ वेरिएशंस करके इसी क्वेश्चन को हम बार-बार चेंज करते रहे। एक ही फंक्शन से आप देखेंगे हम कितनी वैरायटी से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एक नया क्वेश्चन और लेते हैं, वहां से सीखते हैं कि अब उसमें हम कितना चेंजेस कर सकते हैं, कितने वेरिएशंस कर सकते हैं। So you can easily see that this is a different question. Again, number of the 4 question related with this. ABC is a triangle, angle B is a 90 degree, AB is a 12 unit, BC is the 5 unit, and now AC is the missing. And the first question are related with, again you can easily see that you have to find the value of AC. That means you can easily apply the formula Pythagoras theorem and find the value of AC. चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर 13 आना चाहिए इसका, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर मैं निकाल लेते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर AC, नाउ AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ AC you have to find AB square, that means 12 square, and BC 5 square। 144 plus 25 169 रूट आप फाइंड करेंगे AC। सो दिस इज द 13 यूनिट। सो जब आप आंसर फाइंड करते हैं तो आपको यहाँ से आंसर मिलता है, योर आंसर इज 13 यूनिट। सो आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करें, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 या A B C D। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, तो इसका सही आंसर टिक कीजिए, इसका सही आंसर होगा, जो बहुत ही सिंपल लेवल, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आज के मैंने इस वीडियो में आपको लगभग सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या रखा है, वैल्यू ऑफ सेक ए। रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको सेक ए बोला है, सेक ए आप देखेंगे तो ऊपर है, और मैंने सभी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि एंगल ए और एंगल सी कितना डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। When we talking about the angle A, that means angle A में बेस लाइन AB होगा, और when we talking about the angle C, बेस लाइन जो होगा वो BC होगा। When we talking about the angle A, so this line is a base, this line is a perpendicular, hypotenuse चेंज नहीं होगा। और जो क्वेश्चन आपको बेस्ड है वो है सेक ए से, इसका मतलब हम सेक ए को सॉल्व करने से पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं या उसका रेशियो लिख लेते हैं। सो सेक ए हम जानते हैं, और सेक ए इज अ हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, जहां पे आप देखेंगे हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इज द 13 बस, बट आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ बेस दिस इज द 12। ऑप्शन जो होना चाहिए वो 13/12 होना चाहिए। मुझे ऑप्शन ए करेक्ट लगता है, बी, सी और डी पॉसिबल नहीं हो सकते। आप भी देखेंगे तो ऑप्शन ए ही सही होगा। सी के रिस्पेक्ट में और ए के रिस्पेक्ट में देखिए ये डिफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक काम करते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम फिर से देखें। सो थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है। आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, इसमें से क्या इक्वल होगा, मतलब ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, इसको करने के लिए लगभग हमें हर फंक्शन चेक करना पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले हमें ये ना भूलें कि दिस इज द sin a and this is the tan c, this is the two different things, two different values। हम sin a सॉल्व करते हैं, तो नाउ sin a, अगर हम sin a को सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे एंगल a ऊपर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस लाइन हो जाएगा, आपको यहां से मिलेगा 5/13। When we solve the tan c this one perpendicular upon
बेस कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता, तो 10c जब आप सॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर 12/5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ओके, वी स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर सेकंड 10c sec a। तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं 10c को। आप देखेंगे सामने में आप ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है आपसे 10c, दिस इज द 12/5। sec a ऑलरेडी अभी हमने थोड़ी देर पहले sec a पहले भी सॉल्व किया था। sec a जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 13/12। आप देख सकते हैं दोनों में कोई मैच नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा, वैल्यू इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं sin a एंड cos c, चेक करते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। सो sin a आप देखेंगे फिर से ऊपर वाली वैल्यू 5/13। नाउ हम सॉल्व करते हैं cos c। cos c हम सॉल्व करते हैं, इसका मतलब आप देखिए मैं एंगल ये रहा, जब हम cos c लेते हैं और cos c सॉल्व करते हैं दैट मींस cos c जो निकल के आएगा हमारे पास वो आना चाहिए 12/13। दोनों ही कंडीशंस में आप देखेंगे तो यहां से आपको जो आंसर मिला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आपको मिलेगा a के रिस्पेक्ट में, बट अब जब c के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूस, आप सॉरी माय मिस्टेक, मुझसे गलती हो रही है, c के रिस्पेक्ट में दिस इज द 5/13, और जैसे ही आप c के रिस्पेक्ट में 5/13 रखेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन ये दोनों मैच करेंगे। सो ऑप्शन नंबर c आप देखेंगे तो आंसर सही होगा, नन ऑफ दिस इसका गलत है। सो 5/13 एंड 5/13, या थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने फर्स्ट वैल्यू थोड़ी सी गलत हो गई मुझसे। सो 5/13 जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिला आंसर, मतलब sin a is equals to sin c। So option C is correct now. Now we will solve the problem number 4, and problem number 4 is related with, again you can see that sec c, tan a, sin c and cos c। हमें पूछा गया है which of the following is greater than 1। आपको क्या लगता है इसमें से कौन एक से बड़ा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं sec c से, ये sec c है, दिस इज द एंगल c, और अगेन आई एम sec c सॉल्व करें, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इसका ये, दिस इज द एंगल c, आई रिपीट अगेन ये एंगल c है, एंगल c मतलब बेस एंड हाइपोटेन्यूस, ये यहां से मिलेगा 13/5। सॉल्व करते हैं 10a आप देखेंगे 10a अगेन बेस 5/12। नाउ sin c आप दोबारा से देखें sin c, दिस इज द एंगल c, perpendicular by hypotenuse, and the fourth function is cos c। आप देखेंगे cos c, जैसे ही आप cos c सॉल्व करते हैं cos c is 5/13। मुझे ऐसा लगता है आप अगर ध्यान से फ्रैक्शन को देखें तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, डिवाइड करने पे आंसर 1 से बड़ा आएगा। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, आंसर 0 और 1 के बीच में होगा। अगेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, अगेन आंसर बिटवीन 0 to 1, अगेन आंसर विल बी 0 to 1, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। जब आप डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, आंसर 0 से 1 के बीच होगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए मैच करेगा, इसका मतलब sec c जो होगा वो होगा 1 से ग्रेटर। आपने इन क्वेश्चंस में देखा एक ही प्रॉब्लम्स को हम कितने डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा लेवल हाई करके कुछ प्रॉब्लम्स और लूंगा। अगला मेरा जो सेकंड पार्ट होगा केस स्टडी का, उसके अंदर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम दोबारा फिर से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट वीडियो में आपको लगता है कि आप खुद भी कुछ प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को लेकर जरूर बनाएं, नंबर ऑफ तरीके से उसको सॉल्व करना सीखें। थोड़ी गलती करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बनाना जरूर सीखेंगे। इस वीडियो का पर्पस आपको प्रॉब्लम बनाना सिखाना है, आप कैसे खुद फ्रेम कर सकते हैं इन प्रॉब्लम को। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, पसंद आए पसंद करें, ना पसंद आए ना पसंद करें, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट बड़ा वैल्यूएबल रहेगा मेरे लिए, ताकि आने वाले वीडियो हम थोड़ा सा और चेंज कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपने बहुत पेशेंसली सुना, इन प्रॉब्लम्स को आपने देखा। आगे हम और बोर्ड के लिए और प्रिपेयर करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ वीडियोस मैं आपके लिए तैयार करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।